بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے قسط نمبر 19 یعنی 19 حاضر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس داستان کی 1 سے لے کے 8 تک جو اقساط ہیں وہ میرے دوسرے چینل سر رفعت سمیع خان آفیشیل پر ہیں۔ باقی 9 سے لے کے تاحال ساری اقساط جو ہیں وہ رفعت وائس پر پڑی ہیں۔ آپ کو اگر پچھلی قسطیں دیکھنی ہوں اور آپ کو دیکھنی بھی چاہیے تاکہ آپ کو کہانی کا صحیح لطف مل سکے تو آپ کو چاہیے کہ میرے دوسرے چینل پر چلے جائیں۔ آپ پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں پر آپ کو دوسرا چینل پہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ادھر امیر غزنی ارمغانہ کے حریم ناز میں بے ہوش پڑا تھا اور ادھر سبکتگین آدھی رات کے وقت نظام شاہ کے حضور دوزام میں بیٹھا ہوا آج کے واقعات کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ نہیں سبکتگین، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے مضطرب ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ فریب کار انسان تمہیں تیش دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مشتعل ہو کر اپنے ہتھیار کھول دیے تو یاد رکھو اللہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی اور ادنا سپاہی کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اسے سبکتگین بنا دے گا، پھر تم کیا کرو گے سوائے اس کے کہ ساری زندگی کفے افسوس ملتے رہو اور ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے کسی گوشہ گمنامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ پھر میں کیا کروں شیخ؟ سبکتگین بہت زیادہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی شمشیر کی حفاظت کرو جسے ایک بزدل تمہارے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہے۔ نظام شاہ نے خلاف عادت انتہائی تیز اور تند لہجے میں کہا۔ یہ تلوار ایک امانت ہے، دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے حقوق کی امانت۔ اگر تم نے تلوار اپنے ہاتھوں سے پری تگین کے قدموں میں رکھ دی تو تم خیانت جیسے گناہ عظیم کے مرتکب ہوگے۔ ہاں، اگر کسی حادثے میں تمہارے ہاتھ ہی کٹ جائیں تو پھر تم مجبور ہو۔ اس حالت میں تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تمہارے ہاتھ محفوظ ہیں، پھر مجھ سے ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو نفرتوں اور تلخیوں کی بہت تیز ہوائیں چلیں گی، سازشوں کے بڑے بڑے طوفان آئیں گے، تو کیا تم بار بار اپنی تلوار توڑ دو گے؟ سبکتگین نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شیخ، میں ناسازگار ماحول سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ مجھے پری تگین کے تحقیر آمیز سلوک سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ کس کس کی شکایت کرو گے اور کس کس کی باتوں پر بدلا دل توڑو گے؟ نظام شاہ کے لہجے کی تندی ختم ہو چکی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ساری دنیا ہی پری تگینوں سے بھری پڑی ہے، تو کیا تم یہ دنیا چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے سبکتگین۔ تمہیں انہی زہر و آلود فضاؤں میں سانس لے کر اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جب تمہاری سانسیں رک جائیں اور موت تمہارے ارادوں پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس وقت یہ دشمن خود ہی تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھین لیں گے، مگر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہوگا کہ تلوار تم نے پھینکی ہے یا بے کسی کے عالم میں تمہارے ہاتھوں سے چھینی گئی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں بہت بڑا فرق ہے سبکتگین۔ پہلی حالت میں زندہ رہنا کہ اہل ایمان اسی طرح جیتے ہیں، دوسری حالت میں تو بے ضمیر اور مردہ انسانوں کو طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت کی موت اور زندگی سے محفوظ رکھے۔ سبکتگین نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا اور زندان سے نکل کر محل کی طرف چلا آیا۔ دوسرے دن پری تگین نے غزنی کے سبز سالار کو اپنی خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوگے۔ ہاں امیر محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سبکتگین نے نہایت شائستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور کدورت کا ہلکا سا بھی غبار نہ تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ پری تگین نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے استعفے کے بعد تمہیں ایک بہت بڑی جاگیر حاصل ہو جائے گی جہاں تمہیں خاموش مگر پرسکون زندگی گزار سکو گے۔
परी तगीन के होठों पर एक मायने खेज तबस्सुम था और आंखों में बार बार एक वेश्याना चमक करवटें ले रही थी। अमीर मोहतरम, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सबक्तगीन ने बेनियाजा लहजे में कहा। यह तलवार मुझे अमीर अलबतगीन ने अता की थी और मरते वक्त ये हुक्म दिया था कि मैं आखिरी सांस तक इसे अपने जिस्म से जुदा नहीं करूं। सबक्तगीन का जवाब सुनकर तो परी तगीन सन्नाटे में आ गया और गज़बनाक होकर बोला, अमीर अलबतगीन की वसीयत की कोई हैसियत नहीं। मैं तुम्हारा मुतलकुल अनान फरमारवा हूँ, इंतहाई मजबूत और ताकतवर फरमारवा। याद रखो कि मैं खुर्फ इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। अपनी तलवार कमर से खोलो और इसे अदब के साथ मेरे कदमों में रख दो। ये मुमकिन नहीं है अमीर मोहतरम, सबक्तगीन ने बुलंद आवाज में कहा। आप मुझसे महज इसलिए खफा हैं कि मैं दूसरे सरदारों की तरह खुशामद नहीं करता। ये मेरा जुर्म नहीं, बल्कि वो मुनफरिद एजाज है जो मुझे अल्लाह की बारगाह जलाल से अता हुआ है। अभी खिलवत गाह में सबक्तगीन के अल्फाज की कोई बाकी ही थी कि परी तगीन गुस्से से बेकाबू होकर चीख उठा। तो असली गुलाम है सबक्तगीन, नस्ल दर नस्ल महकूम और गुलामों की औलाद, इसलिए तलवार तेरे जिस्म पर जेब नहीं देती। ये तो मर्दान आजाद का हथियार है, इसे फौरन खोल दे। अमीर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मेरा नसबनामा क्या है, सबक्तगीन इसी बावकार अंदाज में कहा। मैं गुलाम ज़्यादा ही सही, मगर अपने फ़राइज़ आपके पसंदीदा मर्दाने आज़ाद से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंजाम देता हूँ। मुझे अपने गुलामी पर नदामत है, ना एहसास कमतरी। मैं सिर्फ अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर इस आला मनसब तक पहुँचा हूँ। अब ये तलवार उसी वक्त मेरे जिस्म से जुदा होगी जब सांसों का खेल खत्म हो जाएगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये कहकर सबक्तगीन अमीर की इजाजत के बगैर वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरो सबक्तगीन, अपने सर पे साला के बिगड़ेंगे तीवर देखकर परी तगीन ने नई चाल चली। हम तुम्हारी इन गुस्ताखियों को फरामोश कर सकते हैं अगर तुम हमारे सामने घुटनों के बल झुक जाओ और जादूगर निजाम शाह को अपने हाथों से कत्ल कर दो। परी तगीन ने सबक्तगीन को इस ओहदे के बहाल रखने की बड़ी अजीब शराइत पेश करी थी। अमीर की बात सुनकर सबक्तगीन बहुत तेजी से पलटा। गजनी के फरमानवा को मालूम होना चाहिए कि इस गुलामजादे को दोनों शराइत मंजूर नहीं। फिर भी हो सकता है कि मैं किसी दिन अमीर के रूबरू घुटनों के बल झुक जाऊं, मगर अपनी जिंदगी में निजाम शाह के जिस्म पर हल्की से खराज भी नहीं आने दूंगा। वो मेरे लिए शेख का दर्जा रखते हैं और अपने शेख पर कुर्बान हो जाना मेरी नजर में हकीर से कुर्बानी है। सबक्तगीन की जुर्रत रात देखकर परी तगीन के ज़हन में तो आनियत सी चल रही थी, मगर वो दुनिया का अय्यार तरीन इंसान था। इसने रियाकारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा, सबक्तगीन, हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। बेशक तुम एक मर्द शुजा हो और इफ़ाए अहद का मफहूम खूब समझते हो। सबक्तगीन ने हैरत नजरों से परी तगीन को तो देखा, फिर रस्मी अंदाज में अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए खिलवतगाह से बाहर निकल गया। सबक्तगीन की इस बागियाना रविश ने परी तगीन को शदीद इज्जत में मुब्तला कर दिया। वो बहुत देर तक अपनी खिलवतगाह में टहलता रहा। फिर इसने अपनी बीवी अरमगाना और असद शिराजी को तन्हाई में तलब करके पूरा वाकया सुना दिया। फिर अपने ससुर को मुखातिब करते हुए कहा, अब मैं एक लम्हे के लिए भी जमीन पर गुस्ताख और नाफरमान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं अपने हुक्म से उसे माजूल करता हूं तो फौज में मेरे खिलाफ बगावत पैदा हो जाने का खंदेशा है। असद शिराजी ने बहुत गौर से अपने दामाद की तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, फर्जन, जब बिसात पर अपने ही मोहरे सरकशी इख्तियार करने लगे तो उन्हें ऐसे मकाम पर कटवाया जाता है जहां खुशफहमी और बेखबरी का बहुत ज्यादा गुबार हो। मैं आपको मतलब नहीं समझा, परी तगीन ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मतलब तो बहुत वाज़ेह है फर्जन। असद शिराजी हिज़्ब आज़ाद इंतहाई अय्यारी के साथ मुस्कुराया। इस गुलामजादे को कुछ दिन इस खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया जाए कि वो गजनी का सबसे ताकतवर इंसान है। इस दौरान
तुम इस पर अपनी इनायत नवाजिशात की बारिश भी करते रहो। फिर जब सबुतगीन की खुद फरीबी का नशा गहरा हो जाए तो उसे इसी के मुहाफिजों से कत्ल करा दो। असद शिराजी की तजवीज़ सुनकर परितगीन बहुत मुतमईन नजर आने लग गया। फिर इसने अपने नए मंसूबे के मुताबिक सबुतगीन की फौजी खिदमत का एतराफ़ करते हुए नई जागीर बख्श दी। सबुतगीन अमीर की चालबाजियों से बाखूबी वाकिफ हो चुका था, इसलिए इसने जागीर पाने के बाद मसलियात के तौर पर परितगीन का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ पहले से भी ज्यादा मोहतात हो गया। वो रोजाना अपने बेटे महमूद को भी होशियार रहने की तलकीन करता रहता था। सबुतगीन के ख्वाबगाह के दरवाजे पर रात के वक्त 12 मुसल्लह सिपाही पहरा देते थे। ये सब के सब अपने सपे सलार के मोतमिद भी थे और जानिसार भी। मगर परितगीन की फितना अंगेजियों ने उनसे उनकी वफादारियां खरीद डाली। जब ये मुहाफिज सेबो दर के अंबार देखकर भी अपना ज़मीर फरोख्त करने पर आमादा नहीं हुए तो परितगीन ने उनके बीवी बच्चों को यरगमाल बना लिया और सबुतगीन के मुहाफिजों को खैरनाक लहजे में धमकियां देते हुए कहा, अगर तुमने रात के अंधेरे में सबुतगीन को कत्ल नहीं किया तो फिर तुम भी अपने अहल अयाल के साथ मौत की तारीकी में गुम कर दिए जाओगे। चुनाचे ये मजबूर लोग इस शख्स के कत्ल पर आमादा हो गए जो मोहताजों को गमगुसार मजलूमों का हामी था। वो रात बहुत ज्यादा तारीख थी जब सबुतगीन के मुहाफिज सिपाही अपने सरदार को कत्ल करने के लिए आपस में सरगोशियां कर रहे थे। सबुतगीन के ख्वाबगाह दूसरे अमीरों के ख्वाबगाह से मुख्तलिफ थी। वो अपने कमरे में तनहा सोता था। ख्वाबगाह के बड़े दरवाजे से मुल्हिक एक छोटा सा कमरा भी था जहाँ एक बूढ़ा शख्स सैयद अली तरमीजी जो सबुतगीन का पुराना मुलाजिम था रात के वक्त इबादत में मसरूफ रहता था। अगर कभी नागहानी तौर पर अमीर को सबुतगीन की जरूरत महसूस होती तो कोई पहरेदार दरवाजे पर दस्तक देता। फिर सैयद अली तरमीजी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलता और फिर इसके बाद सबुतगीन को आहिस्ता से जगाकर अमीर का पैगाम मुंतकिल कर देता। बरसों से सैयद अली का यही मामूल था। सबुतगीन इस बूढ़े परहेजगार को अपने ख़ानदान का अहम तरीन फर्ज समझता था और यही वजह थी कि सैयद अली ख्वाबगाह के खुफिया रास्ते से भी वाकिफ था। यह रास्ता सबुतगीन के बिस्तर के करीब था जहाँ हर वक्त एक रेशमी पर्दा पड़ा रहता था। इस पर्दे के पीछे एक और दरवाजा था जिससे गुजर कर दूसरे कमरों तक पहुंचा जा सकता था। इसके अलावा इसी दरवाजे में दाखिल होने के बाद बाएं जानिब एक और दरवाजा था जो तवील सुरंग की निशानदही करता था, यानी तवील सुरंग आगे की तरफ जा रही थी। जब से सबुतगीन ने महमूद को अपने और परितगीन के इख्तिलाफात के बारे में बताया था, इसी दिन से महमूद इस खुफिया दरवाजे से गुजरकर बाप के बिस्तर के करीब पहुंच जाता और रात भर पर्दे के पीछे शमशीर बेनियाम लिए खड़ा रहता। सबुतगीन को भी खबर नहीं थी कि इसका फरशराज और हसास बेटा बाप की हिफाजत के लिए कई माह से इंतहाई राजदारी के साथ पहरा दे रहा है। उस रात जैसे ही सबुतगीन इशा की नमाज के बाद अपने बिस्तर पर दराज हुआ, महमूद अपने कमरे से निकलकर खुफिया दरवाजे तक पहुंचा और पर्दे के पीछे आकर खड़ा हो गया। आधी रात के करीब मुहाफिज पहरेदारों में से एक ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद अली तरमीजी अपने मुसल्ले से उठा, उसने दरवाजा खोल दिया। कई सिपाही बैक वक्त दरवाजे में दाखिल हुए। सैयद अली तरमीजी ने घबरा कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे एक सिपाही के भरपूर वार ने सैयद अली का सर इसके तन से जुदा कर दिया। बूढ़े की हल्की सी चीख उभरी, जैसे सुनकर महमूद पर्दे के पीछे से निकल आया। इस दौरान तमाम मुहाफिज सिपाही ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके थे। उठिए बाबा जान, महमूद पूरी ताकत से चीखा, आपके खिलाफ बगावत हो गई है। ये कहकर महमूद तेजी से हमलावर की तरफ बढ़ा। यह कि वो अपने 12 शमशीर तमसिन महमूद पर बिजली की तरह लपकी, मगर वो खुद भी एक बल्क था जो कभी एक तरफ चमकता था और कभी दूसरी तरफ। महमूद ने देखते ही देखते कई मुहाफिजों को जिंदगी कैद से आजाद कर दिया, मगर तन्हा था, इसलिए इसके जिस्म पर भी कई गहरे जख्म आए। महमूद की चीख सुनते ही सबुतगीन बेदार हो गया, मगर नींद के खुमार के सबब इसे सूरत हाल को समझने में कुछ देर लगी और इसी वक्फे से फायदा उठाकर मुहाफिज सिपाही महमूद को हलाक करना चाहते थे। लेकिन वो नोखेज सिपाही एक दीवार के मानद इनके सामने खड़ा था और कई हमलावरों को तहत कर चुका था। इससे पहले कि महमूद मजीद जख्म खाकर फर्श पर गिर जाता, सबुतगीन भी अपने दुश्मनों को रोकने के काबिल हो चुका था। फिर जब यह मुख्तसर मैदान कारदार 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो महमूद भी संभल चुका था। इसके बाद कुछ देर तक ख्वाबगाह में चिंगारियां सी उड़ी,
फौलाद के टुकड़ों के आपस में टकराने से अजीब सी आवाजें पैदा हुई, जख्मी सिपाहियों के दिल दौड़ चीखें गूंजी और फिर साजिश और फरेब का घनाउना खेल खत्म हो गया। 10 मुआविज इसी में हलाक हो गए थे और 2 जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो गए थे। खुद महमूद भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो कुछ देर तक अपने कदमों पर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता झुका, ख्वाबगाह की दीवार से पुश्त टेकी और बेहोश हो गया। पूरे महल में एक हंगामा बर्पा हो चुका था। चारों तरफ फौज ही फौज नजर आ रही थी। तमाम सिपाही अपने सपे सालार सबकतगीन की खैरियत जानने के लिए बेकरार थे। जख्मी बेटे को हरम सरा में पहुंचाने के बाद सबकतगीन महल के दरवाजे पर आया और अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे मेरे बेटे महमूद को बचा लिया। महमूद बहुत जख्मी है, मगर तबीब कहते हैं कि इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हम साहबजादे के एक एक जख्म का इंतकाम लेंगे। महल के नीचे खड़े होकर बहुत से सिपाहियों ने चीख कर कहा, सरदार हमें इनके नाम बताइए कि गद्दार कौन है। गजनी के जानिसार फौजी हद से ज्यादा जज्बाती हो चुके थे। जब तक इन नमक हरामों को सियाह चेहरों के साथ गली गली ना फिराया जाएगा, इस वक्त तक हमारे दिलों को सुकून हासिल नहीं होगा। वो बागियों में एक मुख्तसर से दस्ता था, जिनमें से बेशतर हलाक हो चुके हैं। सबकतगीन ने अपने मुश्तइल फौजियों को समझाते हुए कहा, 2 बागी शदीद हालत में जख्मी हैं और बेहोश है, बस इनके होश में आने का इंतजार है, फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि वो बगावत थी या गद्दारी का कोई मंसूबा। सबकतगीन जानता था कि सब कुछ किसके इशारे पर हुआ है, मगर इसने हिकमत अमली से काम लेते हुए फिर वक्त मुजरिम के चेहरे पर पर्दा डाल दिया। वो बगावत नहीं थी सरदार, फौजियों की तेज आवाज से महल की बैरूनी फेदा गूंज रही थी। अगर बगावत होती तो किले की फसील के नीचे आपको इतनी वफादार आवाजें सुनाई न देती। ये लहराती शमशीरें, ये जोश जज्बात से सुर्ख चेहरे और ये ताते फर्माबरदारी के एहसास से उठे हुए सर, सब के सब आपके इशारे के मुंतजिर हैं। हमें हुक्म दीजिए कि हम गद्दारों के सरगना को आपके कदमों में लाकर डाल दें, फिर इसे ऐसी दर्दनाक सजा दें कि आइंदा कोई बदनसीब गद्दारी जैसे गुनाह का तसव्वुर तक न कर सके। अपने सिपाहियों की जानसारी का जिम्मेदार देखकर सबकतगीन बड़ा मुतासिर हुआ। फरीदगीन, अरमगाना और असद शिराजी इस नाकाम बगावत से बहुत परेशान हुए। इन सब ने अपनी आंखों से देख लिया था कि गजनी की फौज किस तरह अपने सबे सालार की हिमायत का दम भरती है। हमारे आदमी कामयाबी के करीब पहुंच चुके थे, मगर महमूद की बरवक्त मदाखलत ने सारी बसात उलट करके रख दी। फरीदगीन वहशी की तरह अपने कमरे में टहल रहा था और शिद्दत इज़्तिराब में बार बार सर के बाल नोच रहा था। अगर वो जख्मी सिपाही होश में आ गए, फरीदगीन ने अपना जुमला मुकम्मल छोड़कर सवालिया नजरों से असद शिराजी की तरफ देखा। इससे पहले कि वो होश में आकर अपनी जबानें खोले, तुम इनकी शहर काट दो। असद शिराजी ने बड़ी बेबाकी से इस मसले का हल पेश किया। लोग यही समझेंगे ना कि जख्मियों के जिस्म से ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मर गए। फरीदगीन ने अपने ससुर की तरफ बहुत गौर से देखा और फिर मुस्कुराने लगा। आपका जहर हर वक्त जागता रहता है। खुदा इस जहर को इस वक्त तक बेदार रखे जब तक मैं अपने दुश्मनों पर मुकम्मल गलबा हासिल न कर लूं। ऐसे ही हो गए फर्जन। असद शिराजी अपनी नशिश से उठा और फरीदगीन के करीब पहुंचकर बोला, तुम तो हवा के तेज झोंकों से ही घबरा जाते हो, जबकि सियासत के कारोबार में ज़ुल्म की आंधियों और खूनी सैलाबों के सिवा कुछ और होता ही क्या है। मैं किसी तूफान से नहीं घबराता। फरीदगीन ने झुंझला कर कहा, मगर आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि गजनी की आवाज पर सबकतगीन के कितने गहरे असरात हैं। इससे कुछ नहीं होता फर्जन। असद शिराजी की अय्यार आंखें मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे हाथों सबकतगीन की मौत मुकद्दर हो चुकी है। सितारों ने मुझसे यही कहा है। आपके सितारे क्या कहते हैं मोहतरम? मेरी समझ में नहीं आता कि वक्त आगे टल क्यों जाता है। अगर सबकतगीन है तो महमूद ही मर गया होता। चंद लम्हों के लिए असद शिराजी घबरा सा गया, मगर फौरन ही इसने नई चाल चली। मेरे फर्जन, सितारों का इल्म इतना पेचीदा है कि तुम इसे आसानी से नहीं समझ पाओगे। बस इतना जान लो कि पूरा साल सबकतगीन और उसके बेटे महमूद के लिए मनहूस तरीन साल है। वो सुबह शाम का किस्सा है। तुम किसी वक्त भी इन दोनों की हलाकत की खबर सुन सकते हो। अगर एक मंसूबा नाकाम हो गया तो अपने दिलो दिमाग को परेशान क्यों करते हो भाई? जब तक तुम्हारा निर्बती बाप जिंदा है तुम्हें कोई गम नहीं करना चाहिए। असद शिराजी के दिमाग की जमीन में मंसूबों का खैर नहीं पड़ा फर्जन।
اس دماغ میں تو 12 مہینے منصوبے ہی منصوبوں کی فصل پھوٹتی رہتی ہے۔ اسد شیرازی نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو بھائی، اب کی بار سبکتگین بالکل نہیں بچے گا۔ یقیناً پری تگی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی دونوں زخمی محافظوں کی شہرگیں کاٹ دی گئیں۔ اب غداری کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے عدالت میں موجود تھی، مگر اس سنگین جرم کے دونوں آخری گواہ دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ سبکتگین نے جب یہ خبر سنی تو اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔